So today we will going to do our important topic of business studies class 12, that is planning. And planning के हमारे 4 फीचर्स लास्ट तक हो गए थे. आज हम उसके बाद के फीचर्स करेंगे. लिखो, मतलब वहीं से कंटिन्यू करना. फिफ्थ हेडिंग डालो, प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस. प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस. बोलो, पहले लिख लो फिर समझाते हैं. लिखो, अलाइक, ALIKE, अलाइक मैनेजमेंट. हाँ बच्चा, सब चीजें मैं तो पॉइंट्स में प्रेफर करती हूँ, मुझे वो अच्छे नहीं लगते पैराग्राफ वाले. तो लिखो, अलाइक मैनेजमेंट, प्लानिंग इज ऑल्सो a never ending and continuous process. Planning is also a never ending and continuous process. Full stop. Second point, in every particular period of time, effective plans are necessary. Effective plans are necessary for the successful implication for the successful implications of the objectives of the objectives into the successed path. Into the successed path. Done. Next point. This is not so. This is not so. फिर कॉमा डाल देना ये लिखने के बाद. That planning is fixed. That planning is fixed. Full stop. Once the plans are made, then they keeps on changing. According to the current policies and the working condition. For example, if any educated person had made the plan 5 years before, and afterwards he gets retired, comma, then it is not possible to work upon his plans and policies only because
There is a huge change in the business environment. There is a huge change in the business environment in the upcoming years. In the upcoming years, and everyone have to change with passage of time, and everyone has to have to change with the passage of time in order to in order to cope up with the current situation and cope up with the current situation. Full stop. मैं इकट्ठा बेटा समझा दूंगी, पहले आप नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, हेडिंग डाल लो, इसके बाद कुछ रह तो नहीं गया इसमें? ओके ओके, कर लो, आराम से करो। नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। बोलो। देखो बच्चा, इसमें लिखो every plan which is made in a company, every plan which is made in a company is made with the purpose of is made with the purpose of with the purpose of doing the decision making, doing the decision making and take the complex decision and take the complex decision in an effective and easy way. In an effective and easy way. Full stop. Next point. It is useful in it is useful in choosing the choosing the best alternative best alternative if the person have to choose if the person have to choose out of out of different alternatives different alternatives. Done. Next point. As it is done by as it is done by the senior staffs and top level managers, senior staffs and top level managers, then then the decision making is accurate. Decision making is accurate because because of their experience. Because of their experience. लास्ट पॉइंट लिखो इसके बाद, प्लानिंग इज अ मेंटल प्रोसेस या प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, कुछ भी लिख लो।
जब लिख लो लिख रही हो बच्चा। देखो, इन प्लानिंग plans are made plans are made for for the effective achieving of the objectives for the effective achievement of the objectives. Full stop. Next point. In this only mental the mental aptitude of the person is included. Mental aptitude of the person is included so that so that proper proper planning is done in a company. Proper planning is done in a company. Chalo. Next point. In planning, in planning, predictions and assumptions are done for future which requires a high level of intelligence. A high level of intelligence. Next point. In planning, many alternatives are kept and we have to choose anyone out of it which is best suited for the company. Full stop. This also requires level of intelligence. This also requires the level of intelligence. Full stop. It is called as a mental process. हो गया? हाँ जी बस चलो पहले मैं आपको ये 3 पॉइंट समझा देती हूँ फिर केस स्टडी करेंगे और अगर केस स्टडी का टाइम नहीं मिला तो मैं आपको सेंड कर दूंगी होमवर्क में आप इसकी केस स्टडी कर लेना अगर नहीं हो पाया तो मैं आपको समझा दूंगी देखो बेसिकली प्लानिंग का क्या मकसद होता है फर्स्ट जो हमारा पॉइंट था आज का फर्स्ट और कल का फिफ्थ प्लानिंग कंटिन्यूस प्रोसेस होता है आपने एक चीज नोटिस की है जैसे अकाउंट्स में जो फीचर्स जो लिमिटेशंस जो एडवांटेजेस अकाउंटिंग के होते हैं वो ही एडवांटेजेस हमारे CFCs अकाउंटिंग रेशियो और मतलब उससे छोटे टर्म्स के होते हैं ऐसे यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव जो फीचर्स हमारे मैनेजमेंट के होते हैं वो ही
एग्जैक्टली तो सेम नहीं, एग्जैक्टली तो किसी भी चीज में सिमिलैरिटी नहीं होती, बट काफी हद तक वही चीजें हमारी फीचर्स होती हैं जो मैनेजमेंट के होते हैं, वही उसके एडवांटेजेस होते हैं, वही लिमिटेशंस होती हैं। एग्री विद मी? तो यही बाबू जैसे ये है, यही प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, जैसे मैनेजमेंट भी कंटिन्यूअस प्रोसेस था। प्लानिंग कभी भी खत्म नहीं हो सकती, प्लानिंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। कभी भी हमारी कंपनी में प्लान्स बनने बंद नहीं हो सकते। कंपनी में प्लान्स बंद होने का मतलब है आपकी कंपनी ने सोचना बंद कर दिया, और सोचना बंद कर दिया तो आपकी कंपनी ने आगे बढ़ने की पर्सपेक्टिव, आगे बढ़ने के रास्तों को देखना, ढूंढना बंद कर दिया। तो इसलिए प्लानिंग हमेशा कही जाती है कि ये एक हमारी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है, क्योंकि विदाउट प्लानिंग यू कैन नॉट एबल टू अचीव एनीथिंग इन योर कंपनी। जो भी आपकी कंपनी में चीजें अचीव की जाती है वो सारी प्लानिंग की ही वजह से की जाती है। प्लानिंग जरिया होता है आपने आपकी कंपनी में आपके टारगेट को अचीव करने का। प्लानिंग सिर्फ बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए हेल्पफुल नहीं होती, प्लानिंग छोटे छोटे हर टारगेट को अचीव करने के लिए हमें प्लान्स बनाने पड़ते हैं। हाँ, ये डिफरेंट होता है कि कुछ प्लान्स हमारे टॉप लेवल मैनेजर बनाते हैं, कुछ मिडिल लेवल, कुछ बॉटम लेवल। दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज डिपेंडेंट अपॉन द काइंड ऑफ प्लान। भाई देखो, अगर तुम्हारी ऐसा प्लान है जो पूरी कंट्री, पूरी कंपनी इफेक्ट हो रही है तो टॉप लेवल बनाएंगे। कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहे तो छोटे मोटे एक दो दिन की डिसीजन है तो मीडियम लेवल, मिडिल लेवल बना लेंगे। रोजमर्रा की चीजें हैं, अब कोई कहे कि हमें एक दिन में, सपोज करो कंपनी में एक छोटा सा एग्जांपल है, चाय के साथ समोसे खाने हैं या नहीं खाने, अब इसके लिए कोई टॉप लेवल को थोड़ा दुखी करेगा, वो तो अपना बजट देख के बॉटम लेवल या ऑपरेशनल लेवल पे बना लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, प्लानिंग कभी खत्म नहीं हो सकती, प्लानिंग हमेशा सेम रहती है, हमेशा होती है। लेवल ऑफ प्लानिंग जरूर डिफरेंट हो जाते हैं बट प्लानिंग हमेशा होती है। समझ गए? नेक्स्ट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। ऑफ कोर्स प्लानिंग हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए ही होती है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? सपोज करो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप अभी जब 12th क्लास क्लियर आउट करोगे अगले साल 99% मार्क्स के साथ, जब आप क्लियर आउट करोगे तो उसके बाद आपके पास कितने सारे ऑल्टरनेटिव्स होंगे दैट बेटर टू डू बीकॉम, बीबीए एंड योर सीए, सीएस और एनीथिंग वट एवर यू वांट टू डू। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कोई डिप्लोमा कोर्स हो गया। आपको क्या करना है? अब आप आप सोच के अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के प्लान करोगे, थिंक करोगे, सबकी पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट देखोगे कि भाई मैंने ये किया तो उससे क्या बेनिफिट होगा, वो किया तो उससे क्या बेनिफिट होगा। आप सोचोगे और सोच के प्लान करके जो आपको सही लगता है, जो आपको फ्यूचर में वट एवर यू वॉन्ट टू बी इन योर लाइफ उससे रिलेटेड लगता है, जो आपको आपके टारगेट के पास लगता है, वो कोर्स को चूज कर लोगे। तो इसमें आपके पास कितने सारे अल्टरनेटिव थे, फिर भी आपने डिसीजन मेकिंग किया प्लानिंग के थ्रू। आपने डिसीजन, जो भी आप अगले साल कोर्स करोगे, जो आपने डिसीजन लिया वो ही डिसीजन आपका आपने प्लानिंग के थ्रू लिया। इसे ही हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं और इसी का नाम डिसीजन मेकिंग होता है। ये तो एक एग्जांपल था हमारे रियल लाइफ वर्ल्ड में। कंपनी में हर मैनेजर के पास, हर पर्सन के पास बहुत सारे ऐसे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जो उसके पास होता है, और उसे उनमें से कुछ बेस्ट ऑप्शंस को चूज करना होता है। अब वो बेस्ट ऑप्शन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितना वो हमारे लिए प्रोडक्टिव होते हैं, किस अकॉर्डिंग वो हमें हेल्प करते हैं हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, किस अकॉर्डिंग हमारे इनकम, हमारी कंपनी के प्रॉफिट को इंक्रीज करके, ये सब सोचना प्लानर्स का काम होता है, ये सब सोचना मैनेजर्स का काम होता है। लेकिन प्लानिंग जब आप करके हटते हो तो ये डिसीजन मेकिंग में ही हेल्प करती है। प्लानिंग के थ्रू आपकी इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है। अगर आप प्लानिंग ढंग से करते हो तो आप प्लानिंग के तहत अपने डिसीजंस ले सकते हो, अपनी कंपनी में डिसीजन ले सकते हो और इफेक्टिवली डिसीजन ले सकते हो। वो डिसीजन जो ना कि सिर्फ आपको बल्कि होल कंपनी में हेल्पफुल हो और जो आपकी होल कंपनी को अपग्रेड करने में आपकी मदद करे। समझ गए? लास्ट पॉइंट है प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। ऑफ कोर्स प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज होते हैं, प्लानिंग का कोई भी रिलेशन फिजिकल वगैरह से नहीं होता। प्लानिंग क्यों दिमाग के थ्रू की जाती है? देखो, आपने डिसीजन लोगे अगले साल आपको क्या करना है, आप माइंड से करोगे ना, ऐसे थोड़ा आप रेस लगाने लग जाओगे और एक्सरसाइज करोगे, वार्म अप करोगे, क्या फायदा ये सब करने का। इससे अच्छा बैठ के माइंड से सोचोगे तो आप अपने डिसीजन पे पहुंच जाओगे। ऐसे प्लानिंग में फिजिकल फिटनेस या और किसी का कुछ रिक्वायर्ड नहीं होता, सिर्फ मेंटल अफेक्शन या मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन से रिक्वायर्ड होता है।
प्लानिंग में इंक्लूड होता है कि आप अपने मेंटल एबिलिटीज को यूज करते हुए कितना अच्छे से एक काम करते हो। हर चीज प्लानिंग में हमारी थिंकिंग पे डिपेंड होती है और ये थिंकिंग हमारी प्रॉपर होनी बहुत रिक्वायर्ड होती है। जैसे आप डिसीजन मेकिंग करते हो, कोई इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स में एक चूज करते हो, वो भी आप प्लानिंग की वजह से ही चूज करते हो। आपके पास जो भी आप करते हो, आप मैनेजमेंट में प्लान्स बनाते हो, बनाना सोचना वो भी आप प्लानिंग के थ्रू करते हो और इसको सोचने के लिए थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस रिक्वायर होती है। इसलिए जो बिल्कुल अनपढ़ बंदा होता है वो प्लानिंग नहीं कर सकता। प्लानिंग को करने के लिए थोड़ी बहुत आपके पास नॉलेज, थोड़ी बहुत आपके पास इफेक्टिवनेस, थोड़ी बहुत आपके पास इंटेलिजेंस होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि प्लानिंग हमारा मेंटल प्रोसेस होता है। प्लानिंग को अच्छे से चलाने के लिए, प्लानिंग को इफेक्टिवली रन आउट करने के लिए हमें इफेक्टिव कंसिडरेशन करने की जरूरत होती है। वो हमारे मेंटल प्रोसेस से ही होता है, वो हमारे माइंड से रिलेटेड ही होता है। इसलिए हम कह सकते हैं प्लानिंग हमारी मेंटल प्रोसेस है जिसमें हमारा माइंड इन्वॉल्व होता है। समझ गए? अच्छे से इसके सारे फीचर्स समझ आ गए? अब बच्चा, अब आप क्या करो, मैं ना आपको आज केस स्टडी नहीं करवा पा रही। मैं प्लानिंग, मीनिंग और प्लानिंग के फीचर से रिलेटेड केस स्टडी कम से कम 2 आपको सेंड कर दूंगी, आप उसे कल तक कर लेना। और अगर आपको नहीं आई तो हम कल डिस्कस कर लेंगे। Okay, बच्चा, then that's all for today in your business class.